اپوزیشن کی قیمت ایک الیکشن ہے، یہ ہار جائیں تو ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وفاقی وزراء کی پی ڈی ایم پر تنقید، جاوید لطیف کے بیان کی مذمت کی، کہا وہ صرف ایک مہرہ ہے، سوچ اس کی ہے جو بانی ایم کیو ایم بننا چاہتے ہیں۔ نواز شریف بانی ایم کیو ایم بننا چاہتے ہیں تو انجام بھی یاد رکھیں، کہا مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں مگر ان کو جانے نہیں دیں گے، قوم کا پیسہ واپس کریں پھر جہاں جانا ہے جائیں۔ یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اگر حکومتی مینڈیٹ تسلیم کرے تو بات چیت کے لیے تیار ہے مگر کیسز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں، نواز شریف بانی ایم کیو ایم بننا چاہتے ہیں لیکن انجام یاد رکھیں، وفاقی وزیر فواد چودھری کی وارننگ۔ جاوید لطیف کی جو یہ سوچ ہے اصل میں وہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں کہ الطاف حسین بننے ضرور لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں۔ وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، اور جو یہاں پہ ہے ان کو شاید ہم لندن نہیں جانے دیں گے۔ واضح کر دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جیلوں میں نہیں بھیجنا چاہتے، آپ پلی بارگین کریں پھر چاہیں لندن جائیں یا سوئٹزرلینڈ، ہماری جان چھوڑیں۔ ہم آپ کو جیلوں میں نہیں بھیجنا چاہتے، آپ پیسے پاکستان کے لوگوں کے واپس کریں، پلی بارگین کریں، آرام سے ہماری طرف سے لندن میں رہیں، سوئٹزرلینڈ میں رہیں، ہماری جان چھوڑیں، اور اس کے بعد لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو، آپ پیسے بھی نہ دیں جیل بھی نہ جائیں، چوائس آپ کی اپنی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا سیاسی لوارسوں کے احتجاج کا پہلا فیز ناکام ہو گیا، اپوزیشن کو اب اپنی سیاسی موت نظر آئے گی۔ ایک سیاسی جو لاوارث ہیں انہوں نے ایک کیمپین شروع کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے۔ پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا۔ تو معیشت کا جو ہمارا جو پہیہ ہے وہ چونکہ اب چل پڑا ہے، جو اپوزیشن ہے اس میں اپنے لیے وفاقی وزیر نے واضح کیا اپوزیشن حکومتی مینڈیٹ تسلیم کرے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، صرف کیسز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حکومت پارلیمنٹ کا ریکارڈ غائب کرنا چاہتی ہے، یہ لوگ کرونا کی آڑ میں سی سی ٹی وی فوٹیج کا ریکارڈ ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ، کہا ہر حربہ استعمال کرنے کا مطلب کیمرے لگانا بھی تھا، 7 ووٹوں کے معاملے پر اب عدالت جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا حکومت کو صرف پی ڈی ایم کی فکر لاحق ہے، انہوں نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی پلاننگ بھی بتا دی۔ جیت جس طریقے سے دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا، ہماری جیت پر وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہے۔ شبلی فراز صاحب جو روزانہ جو گن گا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے تو وہ یہ حربے تھے کیمرے لگانا۔ ہم نے آج سی سی ٹی وی کیمرے کا مطالبہ کیا، اور جیسے ہی ہم نے ریکارڈ کا مطالبہ کیا، کرونا کی آڑ میں پارلیمنٹ بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ ریکارڈ غائب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پارلیمنٹ بلڈنگ کو کسی بھی وقت جو ہے اس کے ریکارڈ روم کو آگ لگ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا کہ سینٹ انتخابات کے آڑے الیکشن ایکٹ نہیں آ سکتا، اپوزیشن اپنا سر دیوار کے ساتھ مارتی رہے، اب کم از کم پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ سارے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن سینیٹرز نے ان کے بیانیے کو شکست دے دی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ پی ڈی ایم والے ایک دوسرے کو ماریں گے اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں وزیر ریلوے اعظم سواتی نے ایک بار پھر اپوزیشن کو پیشکش کی کہ الیکشن اصلاحات کے لیے حکومت کا ساتھ دیا جائے۔ جمہوریت کی پاسداری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، قانون میں ریفارم لانے کے لیے، اپنے جتنے انسٹیٹیوشن ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے انتہائی مثبت کردار ہوگا، اور میں ان کے ساتھی کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اعظم سواتی نے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کے پاکستان مخالف بیان کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیڈر کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھی ہے، پاکستان کھپے گا اور ان کو رسوائی ملے گی۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ جاوید لطیف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، پنجاب پاکستان کا دل ہے، لیکن انہوں نے اس پر دبا لگانے کی کوشش کی۔
वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि PDM वाले एक दूसरे को मारेंगे और हम तमाशा देखेंगे। मौलाना साहब का जो PDM का सदर है उधर उनको डिश किया, ये बड़े मजेदार गेम हुआ। सब ने एक दूसरे से बदले लिए और इंशाल्लाह ये बदले लेते रहेंगे। इनका काम ही ये है, झूठ बोलते हैं, वादा कुछ करते हैं, करते कुछ और। तो मुझे तो बड़ा मजा आया इसका कि ये खेल बड़ा मजेदार आगे भी चलेगा और ये इसी तरह एक दूसरे को मारेंगे और हम तमाशा देखेंगे। परवेज खटक ने कहा कि PDM ने मौलाना के साथ हाथ कर दिया है, मौलाना को भी PDM के अज़ाइम मालूम हो जाना चाहिए। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली बनाने के लिए PDM का इजलास मंगल को हुआ। इजलास में मरियम नवाज की शिरकत मुश्किल हो गई। नैब ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट, जिसकी समाअत कल होगी। मरियम नवाज ने फिलहाल इस्लामाबाद रवानगी मौखर कर दी है। इजलास में शिरकत का फैसला अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत खत्म कराने के लिए अदालत में गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त दी थी। जाली राजकुमारी अब फूलन देवी बन चुकी है। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज पर फिर तंजियाब बाउंसर बरसा दिए। कहा नून लीग ने सियासी इख्तिलाफ को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। फौज से मुतालिक उनका बयान या कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। दावा किया कि नून लीग के लिए जमहूरियत का मतलब सिर्फ इख्तिदार का हुसूल है। जब से नैब ने जाली राजकुमारी और जो अब फूलन देवी का रूप धार चुकी हैं, उनके खिलाफ अपील में जाने का फैसला किया है, नून लीग की सफों में इज़्तिराब है, हलचल है। ये जमात नहीं, ये मफादाती टोला है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुंह पे ठप्पे लगा के PDM के मेंबरान ने स्याही मली PDM के बयानिए पे। वो इस बात की अक्कासी करती है कि PDM के अंदर रियासती इदारे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बदबूदार जो बयानिया है उसको भी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। PMLN को जमहूरियत सिर्फ उस वक्त चाहिए जब ये इक्तदार में हो। जावेद लतीफ के बयान पर फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा जावेद लतीफ ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो रियासत के खिलाफ नारा लगाएंगे। वो पहले बैंक मुलाजिम थे, आज अरबपति हैं। इनकी तीनों डिग्रियां भी जाली हैं। ये भी कहा कि गिलानी वोटों की खरीदो फरोख्त से सेनेटर बने। चेयरमैन सेनेट के नताइज पर इन सब के होश उड़ गए। रूलिंग अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। PDM की सियासत की बरसी हो चुकी, अब उनके पास ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी नहीं है। या जावेद लतीफ, उसने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए उसने कहा अगर बेगम सफदर अवान को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। इसको जुर्रत कैसे हुई कि ये कहे कि बेगम सफदर अवान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चैलेंज दे के कहता हूं, मुझे आज कोर्ट के अंदर ये लेकर जाए, इसकी तीनों डिग्रियां जाली हैं। ये एक बैंक का आम सा तीसरे दर्जे का जो मुलाजिम हुआ करता था, आज ये अरबपति है। इस्लामाबाद की सीट पे हफीज शेख साहब वर्सेस यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला हुआ। यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए, नोटों की मार धाड़ करके। तो बढ़ के जो दावे PDM के और यूसुफ रजा गिलानी साहब के, आसिफ जरदारी साहब के जो सुनने में आ रहे थे, वो कान पक गए थे जना। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो जो रिजल्ट आया सामने, उस रिजल्ट के बाद सारों के होश उड़ गए। बगैर इजाजत जश्न क्यों मनाया? PTI विमेन विंग कराची की जनरल सेक्रेटरी इरम भट्ट और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फौजिया सिद्दीकी को शदीद इख्तिलाफात सामने आए हैं। हफ्ते की रात इंसाफ हाउस में सेनेट की कामयाबी का जश्न मनाया गया था, जो खवातीन अरकान को गले पड़ गया। विमेन विंग कराची की सदर फजा जीशान कहती हैं कि उनसे इजाजत नहीं ली गई थी। आगे बढ़ते हैं। गरीब आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। ओगरा ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 6 रुपए बढ़ाने की समरी अरसाल कर दी है। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना करेगी। आपको बताएं कि PIA के पायलट्स के लाइसेंस मनसूखी के मामले पर नजरसानी के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन की सरबराही में 3 रुकनी बोर्ड कायम कर दिया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। PIA के पायलट्स के लाइसेंस मनसूखी के मामले पर नजरसानी के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन की सरबराही में 3 रुकनी बोर्ड कायम कर दिया गया। मामला था
PIA के पायलट्स के लाइसेंस की मंसूखी का और इसके ऊपर नजर सानी की बात जो है वो की जा रही है। और इसी सिलसिले में एविएशन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन है उनकी सरबराही में 3 रुकनी बोर्ड कायम कर दिया गया है। PIA के पायलट्स के लाइसेंस मंसूखी के मामले पर नजरसानी के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन की सरबराही में 3 रुकनी बोर्ड कायम कर दिया। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। जी अथॉरिटी की जानिब से रफत सईद, आप हमें आपकी आवाज नहीं हम सुन पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रफत सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PIA के पायलट्स के लाइसेंस की मंसूखी के मामले पर नजरसानी के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 3 रुकनी बोर्ड कायम कर दिया है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में शाबानुल मौसम का चांद नजर नहीं आया। यकुम शाबान 16 मार्च और शब बारात 29 मार्च को होगी। वजारत मजहबी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान में शाबानुल मौसम का चांद नजर नहीं आया। यकुम शाबान 16 मार्च और शब बारात 29 मार्च को होगी। वजारत मजहबी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्क में खतरनाक कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 32 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 2664 अफराद वायरस का शिकार हुए और ANP सरबराह असफंदयार वली में भी वायरस की तशखीस हो गई है। केसेस में इजाफे पर लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों और कोटली आजाद कश्मीर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस्लामाबाद में भी कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अमवात, 2664 नए केसेस सामने आ गए। ANP सरबराह असफंदयार वली भी वायरस से मुतासिर। मोहलिक वायरस के फैलाव की शरह बढ़ती ही जा रही है। बरतानिया से फैलने वाली वायरस की नई किस्म ने पंजाब में सूरत हाल ज्यादा खराब कर दी है। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोधा में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मुतासरा शहरों में तमाम कारोबार शाम 6 बजे तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी, जबकि हफ्ते और इतवार को तमाम कारोबारी मराकज बंद रखने की हिदायत कर दी गई। कोटली आजाद कश्मीर में भी कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। 28 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मजहबी और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। जुमे और मंगल को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आजाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना के फैलाव के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सख्तियां बढ़ा दी गयी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को भी 16 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। 17 मार्च से मुताल्लिका अफसरान सिर्फ जरूरी स्टाफ को ऑफिस बुला सकेंगे। औकातकार में भी तब्दीली, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ड्यूटी होगी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए मास्क हर सूरत पहनना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की माहौलियाती पॉलिसियों को दुनिया मान रही है। हमारे ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पज़ीराई मिली है। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के पाकिस्तान की माहौल दोस्त काविशों पर वीडियो भी अपने पैगाम में शेयर की है और वीडियो में हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान कोशिशों को दिखाया गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का कहना है कि पाकिस्तान 3 तरह से अपने मुस्तकबिल को सरसब्ज कर रहा है। पाकिस्तान ने 85,000 से जायद ग्रीन मुलाजमतें पैदा की हैं। दरख्त लगाने का अमल शुरू करके जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया, जबकि 15 नए नेशनल पार्क्स बनाए गए। ऐवानी वजीर आला में पंजाब कल्चरल डे की तकरीब में वजीर आला उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को पंजाब की रिवायती पग पहनाई गई। वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब की सकाफत और रवायात को उजागर करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर को पंजाब की रवायती पग पहनाई गई। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपनी सकाफत को याद रखना जिंदा दिली की इलामत है। मोहब्बत, अमन, भाईचारा और रवादारी पंजाब की सकाफत के नुमाया रंग है। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में 4 अहम शाहराहों की तामीर और तस्सीह के मंसूबों की असूली मंजूरी दे दी गई। चीचावतनी जंग बाईपास, हासिलपुर भावलनगर रोड और
साहिवाल में सैकड़ों किलोमीटर तवील सड़कों के मंसूबों पर करोड़ों रुपए लागत आएगी। इन मंसूबों से कई शहरों को मोटरवे और नेशनल हाईवे से लिंक किया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली मलक एहसान टवाना ने भी मुलाकात की। सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और खबर दें अफगानिस्तान के सूबे कंधार से, जहां अफगानिस्तान तालिबान और कलदम दाइश के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें कलदम दाइश का अहम दहशतगर्द एजाज बंगलज़ई मारा गया है। कलदम दाइश का दहशतगर्द एजाज बंगलज़ई पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। मारा गया दहशतगर्द कलदम दाइश बलूचिस्तान के अमीर फारूक बंगलज़ई का भाई था। अहम खबर है जिला खैबर से, जहां थाना जमरोद की हदद में पुलिस और मनशियात स्मगलरों के दरमियान मुकाबला हुआ है और फायरिंग के तबादले में एडिशनल SHO नियाज मोहम्मद शहीद और एडिशनल SHO जमरोद अख्तर मुनीर जख्मी हो गए हैं। मुलजिमान फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। तमाम तरह अहकामात और पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म न हो सका। कातिल डोर ने एक और कीमती जान ले ली। कराची के इलाके तारिक रोड के करीब पतंग की डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जा बहक हो गया। जा बहक शख्स की शनाख्त उमैर के नाम से हुई। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अभी आपको खबर दे रहे पेशावर से, जहां थाना गरबी में हवालात में 15 साला नौजवान शाहजेब पुरसा तौर पर जाँ बहक हो गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है, जबकि वालिद ने पुलिस पर बेटे को कत्ल करने का इल्जाम आयद किया है। शाहजेब के वालिद कहते हैं कि पुलिस ने गुज़श्ता रोज बेटे को गिरफ्तार किया, ये भी नहीं बताया कि जुर्म क्या है। पुलिस एहलकारों ने बेटे को तशद्दुद करके मारा, बाद में खुदकुशी का ढोंग रचा रहे हैं। फैसलाबाद से खबर दें, जहां वकला की आपस में लड़ाई हो गई। वकला की जानिब से अपने मुखालिफ वकील की कैंटीन में तोड़ फोड़ की गई, जबकि मुखालिफ वकील को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वकला की जानिब से फायरिंग भी की गई, जिसकी CCTV फुटेज सामने आ गई। पूरा वाकया और मेडिकल रिपोर्ट सामने होने के बावजूद पुलिस अब तक मुकदमा भी दर्ज न कर सकी। पंजाब भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का लाहौर में मॉल रोड पर चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी है और 3 रोज हो गए हैं। मुजाहिरीन मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि वफाक की जानिब से जारी की गई हिदायत पर पंजाब हुकूमत फौरी अमल दरामद करते हुए उनके पे स्केल बढ़ाए और मुतालबात मंजूर ना होने तक ये एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। कोटली आजाद कश्मीर में आई अनोखी बारात। दूल्हा हेलीकॉप्टर में चला आया। दूल्हे मियां की फरमाइश थी कि हेलीकॉप्टर में बैठे। बिजनेसमैन राजा रऊफ ने भी भाई की शादी में ये फरमाइश पूरी कर दी। भाई की खुशी के लिए फौरी है। वक्त हो गया है ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब में किफालत सिस्टम खत्म। आज से मुलाजमत का नया कानून नाफिज हो गया। मुमलिकत में इस वक्त 80 लाख गैर मुल्की मुलाजमत कर रहे हैं। तमाम गैर मुल्की मुलाजमीन नए कानून से मुस्तफीद हो सकेंगे। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत की जानिब से जारी नए कानून के नफाज के बाद सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों को पुरानी मुलाजमत का मुआहदा खत्म होने के बाद मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार मिल गया है। नए कानून का मकसद लेबर मार्केट को जदीद बनाना है। लंदन में पुलिस एहलकार के हाथों खातून के मुबैना कत्ल पर शहरियों का एहतजाज 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर शमें रोशन की गई। पुलिस एहलकारों ने मुतादिद माहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है और लंदन पुलिस के एहलकारों पर खातून के अगवा और कत्ल का इल्जाम है। अदालत में इस केस की समाअत मंगल को होनी है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। जाती सर्दी फिर लौट आई। नथिया गली में सयाहों ने डेरे डाल लिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने सर्दी फिर बढ़ा दी। नौशेरा, मर्दान, स्वाबी और चारसद्दा में जल थल एक। वादी सवाद, कालाम, महोडंड, माला जुब्बा और गिरदोनवा में बर्फ ने हर शय जमा दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा,
خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔